ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ سبحانہ وتعالی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين۔ محترم و معزز بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا اور ہمیں مسلمان گھر میں پیدا فرمایا۔ ایمان کی دولت سے مشرف فرما کر ہمیں آج مسجد واصل کوٹنور میں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں جمع فرمایا۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس پر شکر بجا لاتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، تھوڑی سی دیر میں اپنی جگہ لوں گا، کیونکہ میرے بعد ایک عظیم خطاب ہمیں سماعت کرنا ہے پیر طریقت سید ساجد احمد یعقوب صاحب مقدس اللہ العالی سے، لہٰذا میں چند کلمات ادا کر کے آپ حضرات کے روبرو حضرت قبلہ کو کر دوں گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بزرگان دین نے ارشاد فرمایا، حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو سمجھانے کے لیے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں نے بھی اس فارسی شعر کو اپنی کتابوں میں لکھا اور پڑھا۔ یہ بتلایا گیا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ولیوں کی جماعت میں ایسا ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ پیغمبروں کی جماعت میں ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے سردار جس طریقے سے ہمارے آقا علیہ السلام ہیں، اسی طریقے سے ولیوں کے سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے اللہ پر ایمان لانا ہے، جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جہاں پر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتی ہیں، قرآن مجید کی آیتیں جہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیتی ہے، حضور کی اطاعت کا حکم دیتی ہے، وہی قرآن مجید کی آیتوں کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی شان بتلاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہی ولیوں کی شان ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھیں تو ہمیں کئی مقامات پر اولیاء اللہ کا ذکر ملتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ ولی کہتے ہیں دوست کو، اولیاء کہتے ہیں دوستوں کو۔ اولیاء اللہ مانے اللہ کے دوست، جو اللہ کے قریب رہتے ہیں وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ آپ قرآن مجید جب پڑھیں گے تو آپ کو سورہ یونس کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت آپ کو نظر آئے گی۔ پھر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، آپ کو ان اولیاءہ الا المتقون، یہاں پر ولیوں کی شان نظر آئے گی۔ کبھی اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی عبادت کا انداز ہم کو بتلاتا، یہ کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ
यमशून अला अर्दी हौना, औलिया इकराम जमीन पर कैसे आजिज़ी इंकिसारी से चलते हैं, वो हमको कुरान में अल्लाह बतलाता है। कभी कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये जो मेरे दोस्त हैं ये रातों में खूब सजदे करते हैं, खूब रुकू करते हैं और पूरी रात मेरी इबादत में गुजारते हैं। कभी अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत का हमको हुक्म देता है, कभी उनकी सोहबत में बैठने का हमको हुक्म देता है। हम कुरान मजीद गौर से पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें औलिया की शान समझ में नहीं आती। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जिस शख्सियत को हमने मौजूए सुखन बनाया है वो औलिया इकराम में ऐसे चमकते हैं जैसे आसमान पर सूरज चमकता है। वो गौसे आजम दस्तगीर अवलियों में ऐसे चमक रहे हैं जिस तरीके से रात होने के बाद 14वीं रात का चांद नजर आता है। वलियों की जमात में हम देखते हैं, नूरानी जमात में तो हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमको बिल्कुल नुमाया शख्सियत नजर आते हैं। मैं आपको बतलाऊं, हजरत पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर अलैहि रहमत व रिजवान आज से कम व बेश 1000 साल होने को आ रहे हैं। 900 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका। हजरत पीराने पीर गौसे आजम का मिसाल होकर 900 साल से दुनिया उनको मान रही है, उनसे मोहब्बत कर रही है और उनके सिलसिले में लोग मुरीद हो रहे हैं और उनकी तालीमात को पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। जो पैगाम हजरत पीराने पीर गौसे आजम लेकर आए थे उस पैगाम को लोग फैलाने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। कौन है हजरत पीराने पीर, क्यों इनकी शोहरत जमाने में हो गई? क्या हमारी कोई रिश्तेदारी है? क्या वो हमारे खानदान के कोई पर्दे परीद हैं? अगर खानदान में हमारे किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाए तो हम जो है थोड़े दिन उनको याद करते हैं। कुछ लोग 10वां कर देते हैं, 40वां कर देते हैं, फिर याद आए तो बरसी कर देते हैं, फिर उतना हमें वो याद नहीं आते। मगर मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये औलिया अल्लाह हमको क्यों बार बार याद आते हैं? ये वली हमको क्यों हमारे दिल में बसे हुए हैं? हम इनकी याद मनाने के लिए दूर दराज से आकर क्यों बैठते हैं? इसकी एक वजह है। मैं आपको पहले हजरत पीराने पीर का खानदानी पस मंजर बतलाऊं, फिर वो वजह बतलाऊंगा कि हम उनसे मोहब्बत क्यों करते हैं। हजरत पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर अलैहि रहमत व रिजवान उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसको खानदान रसूल कहते हैं। आपके अब्बा जान की तरफ से अगर हम गौसे पाक के वालिद, फिर उनके वालिद, फिर उनके दादा, ऊपर तक अगर हम देखते चले जाएं तो उनके ऊपर के दादा हजरत इमाम हसन मुज्तबा होते हैं। फिर उनकी अम्मी जान की तरफ से अगर हम ऊपर देखते जाएं, पीराने पीर के नाना, फिर नाना के वालिद, फिर उनके वालिद के ऊपर से जब हम देखते चले जाएं तो हजरत सय्यदुना इमाम हुसैन जो करबला में शहीद हुए नवासे रसूल, उनसे उनकी अम्मी जान का सिलसिला मिलता है। यानी अब्बा जान की तरफ से हजरत पीराने पीर हसनी सैयद है और अम्मी जान की तरफ से हजरत पीराने पीर हुसैनी सैयद है। इसको नजीबुत तरफैन सादात कहते हैं। ये तो मामला हुआ। मगर मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, सादात तो दुनिया में लाखों आए, हजारों आए। उन तमाम सादात किराम में हमें पीराने पीर ज़्यादा क्यों महबूब है? हर सादात हमें महबूब है, मगर पीराने पीर की शान इसलिए निराली है कि देखिए, एक हदीस पाक से मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। आप आइए, कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल तरीन किताब अगर कोई है, बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, फिर तिर्मिज़ी शरीफ है। ये किताबें हैं मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों। कुरान मजीद के बाद जिसका बड़ा मर्तबा है वो बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है। जब इन दोनों किताबों में कोई हदीस आ जाती है उसको मुत्तफ़क़ुन अलैह कहते हैं। मैं मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस आपके सामने अर्ज करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने वलियों से कैसी मोहब्बत करता है और हमारे दिलों में ये मोहब्बत कैसी आई? क्या हमें किसी ने ये सबक पढ़ाया या हमारे दिलों में मोहब्बत खुद ब खुद आ गई? इससे आपको अंदाजा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं? इदा अहब्बल्लाहु अल-अब्दा नादा जिब्रील। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला किसी बंदे से प्यार करता है, अल्लाह के महबूब होने के लिए सबसे पहले मुसलमान होना, कलमा पढ़ना और उसको समझना, फिर उस पर अमल करना, अल्लाह के रसूल के
तालीमात पर अमल करना, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी अदाओं को जब पसंद करने लगता है, उसको अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह ताला बंदे को जब अपना महबूब बना लेता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को बुलाता है, आज भी बुलाता है। ऐसा नहीं कि अल्लाह के नेक बंदे खत्म हो गए, तादने शम्सो कमर, अल्लाह के नेक बंदे पैदा होते रहेंगे। वो नबियों का सिलसिला खत्म हुआ, वलियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, वो आएंगे क़यामत की सुबह तक, औलिया अल्लाह आते रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील अमीन को बुलाता है, ऐ जिब्राइल आप इधर आइए। हजरत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं लब्बैक बारी ताला, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, वो देखो जमीन पर मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। यानी अल्लाह ताला पहले उस बंदे को अपना महबूब बना लिया। अल्लाह जिसको मोहब्बत करता है उसको महबूब कहते हैं और अल्लाह को मुहिब कहते हैं। अल्लाह मोहब्बत करने वाला, और जिससे अल्लाह मोहब्बत कर रहा है वो महबूब हो चुका है। अल्लाह फरमाता है कि ऐ जिब्राइल मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। जिब्राइल अर्ज़ करते हैं कि मौला मैं क्या करूँ? हजरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ऐ जिब्राइल जब मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इससे मोहब्बत करना मेरी सुन्नत हो गई, तुम भी इससे मोहब्बत किया करो। हजरत जिब्राइल भी उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसके बाद इरशाद होता है, ऐ जिब्राइल आप अकेले मोहब्बत मत करो, ये आसमानी दुनिया में निदा लगाओ, आवाज दे दो। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, आसमान कितने बड़े हैं आपको मालूम है? ये जमीन पहले आसमान के सामने ऐसी है जैसे अंगूठी में एक नगीना होता है। इतना बड़ा आसमान, जमीन बिल्कुल नगीने की तरह है। इतना बड़ा आसमान, फिर दूसरा आसमान इतना बड़ा है। पहला आसमान, जब दूसरे आसमान से कोई पहले आसमान को देखता है वो बिल्कुल अंगूठी के नगीने की तरह दिखता है। फिर इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अल्लाह फरमाता है, ऐ जिब्राइल तुम सारे फरिश्तों में ऐलान कर दो। और मेरे दोस्तों, ये जो ऐलान होता है ये ऐलान कान में नहीं होता। ऐलान किसको कहते हैं? ऐलान करने के लिए माइक की जरूरत पड़ती है, ऐलान करने के लिए सोशल मीडिया की जरूरत पड़ती है। जैसे हम अपने ग्रुप्स के अंदर कोई चीज को डाल देते हैं कि आगे फैलाओ, उसको भी एक किस्म का ऐलान कहते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, पैगाम भी बड़ा है, ऐलान भी बड़ा होना चाहिए, मोहब्बत भी अजीम है, ऐलान भी अजीम होना चाहिए। अब यहाँ पर हुक्म देने वाला रब्बुल आलमीन है और ऐलान करने वाला फरिश्तों का सरदार है। क्या अंदाजा लगा सकते हैं? ये बंदा कोई मामूली नहीं है जिसकी मोहब्बत का ऐलान हो रहा है। हजरत जिब्राइल ऐलान करते हैं कि फरिश्तों सुनो, इस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो, मैं भी मोहब्बत कर लो, तुम भी इससे मोहब्बत करो। मालूम हुआ वलियों से हम बाद में मोहब्बत करते हैं, पहले अल्लाह मोहब्बत करता है, फिर जिब्राइल मोहब्बत करते हैं, फिर आसमान के सारे फरिश्ते उनसे मोहब्बत करते हैं। जब वो मोहब्बत आम हो जाती है, जब वो ऐलान आम हो जाता है, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों के दिलों के अंदर मोहब्बत डालता है। आइए कुरान मजीद पढ़िए, अल्लाह फरमाता है, इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। वुद्दा किसको कहते हैं? मोहब्बत को कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन बंदों की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है जो नेक अमल करते हैं, जो ईमान वाले होते हैं और नेक अमल करते हैं। रहमान उनकी मोहब्बत को डाल देता है। मेरे दोस्तों, हम जो वलियों से मोहब्बत कर रहे हैं, हमारी जबान पर जो गौसे आजम का नाम आ गया, हमारी जबान पर गरीब नवाज बंदा नवाज का नाम आ गया, हमारी जबानों पर जो औलिया अल्लाह का नाम आता है, ये अल्लाह ने हमारे दिलों में डाला। अब जो बात दिल में आ गई वो जबान पे आती जाती है। मालूम ये हुआ वलियों से मोहब्बत करना बाद में हमारा काम है। पहले अल्लाह की सुन्नत है, फिर सारे फरिश्तों की सुन्नत है। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, उसके बाद क्या होता है? उस बंदे की कबूलियत को जमीन में डाल दिया जाता है। अब हम इस बात से आपको हजरत पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर के एक कौल से हम सुनते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं हजरत पीराने पीर कि मेरी अजमत के डंके जमीन और आसमान में बज रहे हैं। हजरत पीराने पीर कहते हैं मेरी अजमत के डंके जमीन और आसमान में बज रहे हैं और अल्लाह ने मेरी मोहब्बत को महबूब के दिलों में डाल दिया है। ये हदीस पाक, ये शेर हमें उस वक्त समझ में आया जब हमने हदीस पाक को पढ़ी कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं
کہ آسمان کے اندر نیک بندے کی عظمت کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، تبھی تو غوث پاک فرما رہے ہیں زمین والے بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والے بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، ولیوں کو ماننا یہ قرآن کا حکم ہے اور ان سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی چاشنی کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے محبت کرنے والے کو انعام کیا ملتا ہے، بغض رکھنے والے کو کیا سزا ملتی ہے۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرو۔ انعام والوں کو کیا محبت کا کیا انعام ملتا ہے، پہلے میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جو میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، خبردار۔ اللہ کے معنی کیا ہے عربی میں؟ خبردار۔ خبردار بولتے آدمی ایک دم ہوشیار ہو جاتا کہ بھائی کوئی خاص بات آنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد انا کے معنی بے شک۔ اب یہ جو بات آ رہی اس میں کوئی شک نہیں کرنا، یہ جو پہلے تو پورے اللہ کے کلام میں بے شک نہیں کرنا، یہ جو بات آ رہی اس میں ذرا بھی شک نہیں کرنا۔ اللہ انا اولیاء اللہ، کہ اللہ کے دوستوں کو لا خوف کوئی ڈر نہیں ہے، ولا هم يحزنون اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ رنجیدہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ دل سے غمزدہ نہیں ہوتے، یعنی غم ان کے اوپر طاری نہیں ہوتا۔ دنیا کا غم، یہ لٹ گیا غمزدہ ہو گئے، کبھی نقصان ہو گیا، یہ چیزوں کا غم ان کو نہیں ہوتا۔ ہاں خوف الہی ضرور ہوتا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہیں۔ مخلوق سے نہیں ڈرتے، بندوں سے نہیں ڈرتے، بندوں سے کوئی ولی نہیں ڈرتا۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل میں رکھتے ہیں، دنیا کے نقصان سے ان کو کوئی رنجیدگی نہیں ہوتی۔ یہ آیت کو آپ سمجھ جائیے۔ اب اس کی روشنی میں ولیوں سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ آئیے پھر بخاری شریف میں، قرآن مجید کے بعد بخاری شریف کا نمبر ہے، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر کرم کرے گا کہ کچھ لوگ جنت میں نہیں جا رہے، کچھ لوگ جنت میں نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندو تمہارا حساب کتاب ہو گیا، آپ جنت میں چلے جائیے نا، تمہارا حساب کتاب ہو گیا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جاتے، جنت میں آدمی محنت کر رہا جنت میں جانے کے لیے، نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، ماں باپ کی خدمت کر رہا، جو کچھ کر رہا جنت میں جانے کے لیے کر رہا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اللہ سے جنت بلکہ جنت الفردوس مانگو، یہ حضور کا حکم ہے، مگر یہ لوگ جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ باری تعالیٰ عرض کرتا ہے اے میرے بندو تم جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین ہم جنت میں اس لیے داخل نہیں ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے کچھ ساتھی تھے، ہمارے ساتھ کچھ بیٹھنے والے تھے، ہماری صحبت میں رہنے والے تھے، وہ کانوا یصلون معنا، وہ لوگ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور وہ لوگ ہمارے ساتھ زکات دیا کرتے تھے، وہ لوگ ہمارے ساتھ دین کا کام کیا کرتے تھے، مگر باری تعالیٰ کچھ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، کچھ ان کے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ وہ دوزخ میں جا چکے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کو دوزخ میں چھوڑ کر ہم جنت میں چلے جائیں، ان کو دوزخ میں چھوڑ کر ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، کیا بڑا دل ہوتا ہے اولیاء اللہ کا، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی خاندانی تعلقات ہے، صحبت میں بیٹھنے والے کو وہاں بھی نہیں بھول رہے ہیں۔ عام آدمی ہوتا تو جنت کا دروازہ کھلتے ہی اندر چلے جاتا، پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا، مگر ولی کی محبت، ولی کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے، جنت میں اکیلے نہیں جا رہے ہیں، ان کا خیال کر رہے ہیں جو دوزخ میں چلے گئے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ نیک عمل بھی کرتے تھے، پھر بھی دوزخ میں چلے گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ تمام نمازیں ہمیں نہیں بخشوائیں گی، کچھ نمازوں کو اگر ہم صحت سے ادا نہیں کریں گے، سنت کے مطابق ادا نہیں کریں گے، یا جیسے محبت کے ساتھ ادا کرنا ہے ویسے ادا نہیں کریں گے، تو وہ نمازیں دوزخ میں بھی لے جا سکتی ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی۔ پھر دوسری بات یہ معلوم ہوئی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مولا یہ لوگ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے مگر کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلے گئے۔ اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ اے بندو تم جنت میں جاؤ نا، وہ دوزخیوں کو تم کو کیا کرنا ہے، وہ دوزخ والے چلے گئے آپ اپنا جنت میں جاؤ۔ نہیں میرے دوستو، اولیاء اللہ زندگی بھر اللہ کی بات جانے نہیں دیے، اب اللہ ان کی بات جانے نہیں دیتا۔
हमारे साथ जो उठे बैठे उन लोगों को हम जन्नत में ले जाएं, उनको जन्नत में ले जाएं। यहाँ पर हदीस की शरह करने वाले लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पहले से दोज़ख को ये हुक्म देगा कि ऐ दोज़ख ये बंदों को, अल्लाह को पहले से मालूम कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ दोज़ख कुछ बंदों को दोज़ख में डाल रहा हो, खबरदार उनके चेहरों को ना जलाना, उनके सीनों को ना जलाना, बल्कि खाली उनके पैरों तक लगना, पैरों पर आग लगना, उनके चेहरों को ना जलाना। यहाँ पर मुहद्दिसीन लिखते हैं शारिहीन हदीस इसलिए कि औलिया अल्लाह जन्नत के पास से दोज़ख में आएंगे, दोज़ख में आकर उनके चेहरों को देखकर पहचान कर निकालेंगे। ऐसा ही होगा, अल्लाह ताला हुक्म देगा कि ऐ मेरे बंदो तुम जाओ जन्नत में जाओ, जन्नत में नहीं बल्कि दोज़ख में जाओ, दोज़ख में जाकर उन लोगों को निकालो जिन लोगों को तुम पहचानते हो। ये अल्लाह अल्फाज है हदीस पाक में, ये नहीं कहेगा कि जो नमाज़ें पढ़ रहे थे, ये नहीं कहेगा कि जो पूरे कलमा पढ़ रहे थे, कलमा पढ़ने वाला जरूर बजरूर जन्नत में दाखिल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों अब जो निकल रहे हैं ये वलियों की पहचान की वजह से निकल रहे हैं। इसलिए कि बड़े लोग बोलते हैं कि बेटा मिला जुला रहा करो, कांटेक्ट में रहा करो, ज्यादा रास्ते में रहा करो, सलाम दुआ करते रहना बड़े लोगों से। अगर हम बात नहीं करेंगे और उनको लाइट दे लेंगे, नजरअंदाज करेंगे, इससे अदावतें बढ़ती है, दुश्मनी बढ़ती है। कांटेक्ट में रहने से, सलाम दुआ करने से क्या होता है, ऐसे बुरे वक्त में काम आते हैं। अब औलिया अल्लाह से जो आदमी कांटेक्ट में रहा और उनसे जो रास्ते में रहा, उनकी मोहब्बत को अपने सीने में रखा, क्या फायदा हो रहा उसको? दोज़ख में जाने के बावजूद औलिया अल्लाह दोज़ख में तशरीफ लाएंगे, पहचानने वालों को निकालेंगे। दूसरे लोग भी बोलेंगे हम भी आते, हम भी आते। वो जो लोग उनसे मोहब्बत नहीं करते थे उनको छोड़ देंगे और औलिया अल्लाह अपने उनसे मोहब्बत करने वालों को उठाएंगे और वहां से लेकर आएंगे। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि दोज़ख से निकलने का जो रास्ता है वो औलिया अल्लाह की मोहब्बत। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि दोज़ख से निकलने का एक रास्ता अल्लाह ने बनाया है। वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता ये है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों से मोहब्बत करना। ये फायदा हो गया, फिर वो लोग निकालेंगे अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। जो औलिया अल्लाह दुनिया में हमको बुराई में देखना नहीं चाहते, अगर हम उनसे मोहब्बत करेंगे तो क़यामत के दिन भी वो अल्लाह ताला के हुक्म से इजाजत लेकर जन्नत दोज़ख से निकालकर जन्नत में ले जाएंगे। ये हो गया भाई औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने का फायदा। अब देखिए हम यहाँ पर बहुत सारे औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हम जो वली का नाम आए उस वली से हम मोहब्बत करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दोस्त नहीं है साहब, वो अल्लाह का दोस्त है। और अल्लाह जितना बड़ा रब है, अल्लाह ताला की दोस्ती भी उतनी बड़ी होती है। एक बड़े आदमी से अगर किसी का राब्ता हो जाए, किसी पॉलिटिशियन से या किसी बड़े मंत्री से किसी का राब्ता हो जाए, हम उस राब्ते वाले को सलाम दुआ में रखते हैं कि हमारी बात पहुंच जाए। ये तो औलिया अल्लाह है, इनका राब्ता अल्लाह से डायरेक्ट होता है, इनका कांटेक्ट अल्लाह से होता है। जब हम इनसे दुश्मनी करते हैं तो अल्लाह भी नाराज होता है। जब इनसे दोस्ती हम रखते हैं, जिस तरीके से दोस्त का दोस्त भी महबूब होता है, वली को चाहने वाला भी अल्लाह का महबूब होता है। ये हो गया फायदा औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने का। अब जिनसे हम मोहब्बत कर रहे हैं ये सिर्फ वली नहीं, वलियों के सरदार हैं, ये वलियों के सरदार हैं, हबीब किरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले। आप अंदाजा लगाइए कि क़यामत के दिन अगर खुदा न खास्ता हमारी कुछ बदआमालियों की वजह से, वैसे तो बदआमाली नहीं करना, इस्लाम में नहीं रहना, हम वलियों से मोहब्बत करते हैं, हम जो चाहे करते होता नहीं साहब, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। मोहब्बत करने वाला ज्यादा अमल करता, उनको ज्यादा खुश करता। इसी तरीके से अगर किसी वजह से अगर दोज़ख के हकदार हो भी जाए थोड़ी देर के लिए, कि यकीन रखना कि गौसे आज़म की मोहब्बत हमको जरूर नजात दिलाएगी। ये हो गया फायदा। आइए दुश्मनी का क्या उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी यानी अल्लाह ने फरमाया जिसको रसूलुल्लाह ने नकल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला औलिया अल्लाह की तारीफ करता है। पहले ये करता है जब बंदा बहुत सारी इबादत फराइज करने के बाद नवाफिल बहुत कसरत से पढ़ता है और मेरी बारगाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, एक वली के एक माने है करीब रहने वाला, अल्लाह के करीब रहने वाला। जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह जब उसको अपना महबूब बनाता है, हदीस के अल्फाज है, अल्लाह इरशाद फरमाता है वकुन्तु
समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं बंदे का कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं बंदे की आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, अरे उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। कौन हाथ बन रहा, कौन पैर बन रहा? वो अल्लाह जिसको हाथ नहीं है, वो अल्लाह जिसको पैर से पाक, आंख से पाक, कान से पाक, वो अल्लाह फरमाता है अब इस बंदे का हाथ, पैर और कान, आंख मैं बन जाता हूँ, इसकी ज़बान मैं बन जाता हूँ। मतलब ये कि बंदा बंदा रहेगा, कलाम ज़बान उसकी रहेगी, अब जो कलाम निकलेगा अल्लाह का, हाथ उसका रहेगा, मगर जो देना है वो करामत अल्लाह की रहेगी। इसी तरीके से देखना भी वली का होता है, उसमें जो नूर और उसमें जो फिरासत होती है वो अल्लाह तबारक व तआला की होती है। ये हदीस के बाद आक़ाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं, मन आदाली वलियन फक़द आदंतहु बिल हर्ब, अल्लाह का फरमान है जो कोई मेरे वली से दुश्मनी करेगा, दुश्मनी के लफ्ज पर आप गौर कीजिए, ये नहीं कहा कि जो कोई मेरे वली को मारेगा, ये भी नहीं कहा जो मेरे वली को गाली दे, गाली देना तो दूर की बात, मारना तो दूर की बात, मन आदाली वलियन, जो मेरे किसी एक वली, कोई भी हो सकता हो, वो बगदाद वाले भी हो सकते हैं, ख्वाजा अजमेर भी हो सकते हैं, वो शाह गुलबर्गा भी हो सकते हैं, या इस इलाके के कोई बुजुर्ग भी हो सकते हैं, अदना वली, कोई एक वली, मन आदाली वलियन, जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखेगा, तो अल्लाह बदले में ये नहीं कहता मैं भी उससे दुश्मनी रखूंगा, नहीं, अल्लाह फरमाता है बदले में फक़द आदंतहु बिल हर्ब, मैं उससे ऐलान जंग करता हूं, मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। है किसी में हिम्मत, है किसी में इतनी ताकत जो दोनों जहां के मालिक से जंग करे, है किसी में ये ताकत जो अल्लाह तबारक व तआला से लड़े और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मैदान जंग में आए। इतनी बड़ी बात अल्लाह क्यों कहता है? यहाँ वलियों की ताकत बतला रहा है, इनको मामूली मत समझो, इनसे दुश्मनी करोगे, और दुश्मनी करने के लिए मैंने कहा मारना गाली देना जरूरी नहीं, अदावत एक अंदर का मर्ज है, ये जो दुश्मनी है अंदर का मर्ज है। अगर दिल में भी हम बुरा मान लिए, अगर दिल में भी उनके ताल्लुक से बुग़्ज़ आ गया और बुरी बातें वलियों के बारे में हम करें, भाई ठीक है दरगाह को नहीं गए तो नहीं गए, कोई बात नहीं, आप फूल नहीं चढ़ाए, चादर नहीं चढ़ाए, ठीक है वो आपका मसला है, नहीं जाकर फिर उनके बारे में बकवास करना और गलत बातें करना और ऐसी बात करना कि ये तो बिल्कुल जो है मजबूर बंदे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये मर गए, मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, ऐसी बातें खुदारा मुसलमानों हमें नहीं करना चाहिए। कलमा गो ऐसी बातें नहीं करता, देखो वो किसका दोस्त है, वो हय्युल क़य्यूम का दोस्त है, वो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह उनको जिंदा रख दिया, जमीन में रख दिया, वो जिंदगी को हम समझ नहीं सकते। इसी तरीके से अल्लाह फरमाता है मन आदाली वलियन फक़द आदंतहु बिल हर्ब, अगर कोई किसी मेरे एक अदना वली से भी दुश्मनी रखता है, यानी दिल में बुराई रखता है, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। ये इतनी खतरनाक वईद है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमें समझना चाहिए। इस हदीस का दूसरा मतलब, अब जो मेरे वली से मोहब्बत रखता है मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, यानी मैं भी उसको अपना दोस्त बना लेता हूँ। इसका ये मतलब होता है दुश्मनी करने पर अल्लाह का ऐलान जंग है, और दोस्ती रखने पर अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी रहमत हमारे करीब हो जाती है। दोस्त का दोस्त जैसे प्यारा होता है, वली का चाहने वाला भी अल्लाह को प्यारा होता है। तो मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाकर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, किसी वली को बड़ा छोटा कहकर तकाबुल में नहीं लाना, जिसका जो मर्तबा है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला तय करता है, और उसने अपनी कुदरत से जिसको जो शान अता फरमाई है वो उसने अता फरमाई है। अगर हम किसी वली की करामत और किसी वली की बड़ाई को देखकर हम अगर हसद करें तो अल्लाह की अता पर हसद करने के बराबर होगा। यानी अल्लाह ने उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? भाई अल्लाह की तकसीम है, जिसको चाहे दे दे, किसी को गौस बना दे, किसी को ख्वाजा बना दे, किसी को ताजुल औलिया बना दे, किसी को बंदा नवाज बना दे, वो अल्लाह की मर्जी है। हम अल्लाह की तकसीम पर राजी होना चाहिए, औलिया से मोहब्बत करना, और बिलखुसूस तमाम औलिया के सरदार हजरत पीरान के गौसे आजम से भी मोहब्बत करना, उनके नक्श कदम पर चलना और उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल करने की कोशिश करना। हजरत पीरान पीर दुनिया में आए, माँ पे वली बनकर आए, और विलायत पूरी जिंदगी विलायत की है, पूरी जिंदगी करामत की है। इसके बावजूद भी हजरत पीरान पीर शरीयत मोहम्मदी को नहीं छोड़े, हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को सामने रखे और लोगों को उस हुक्म की तरफ बुलाए, और अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर खुद रहे और लोगों को उसी अहले सुन्नत वल जमात की आप दावत देते रहे।
علاوہ دیگر جتنے بھی فقہ باطلات ہے آپ اس کا رد کرتے رہے. آپ کی کتابیں پڑھنے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے غنیت الطالبین کے اندر حضرت پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے بھائی جتنے 73 فرقے ہیں ان میں سے ایک ناجی جو جماعت ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے. پھر آگے آپ لکھتے ہیں اہل سنت ہی اہل جنت ہے. آپ کے پاس اہل سنت ہی اہل جنت ہے. اس لیے جتنے اولیاء تشریف لائے بھائی کون سے بھی سلسلے کے ہو قادری چشتی نقشبندی سہروردی جو آپ کو سلسلہ تھا وہ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کے اولیاء کرام ہیں. اسی لیے دنیا سے ان کے جانے کے بعد بھی ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. ہم کشا کشا ان کی محبت میں جمع ہوتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک جمع ہوتے رہیں گے. یہ محفلیں ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گی. یہ محفلیں ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گی. یہ محفلیں ہماری جنت میں جانے کے راستے کو آسان کریں گی. ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے دوستوں کا ذکر کیا. جو عنایتیں اس کے اللہ نے اپنے بندوں پر کی ہے ان کا ہم نے تذکرہ کیا. یہ کوئی غلط نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام سلسلوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو تعلیمات حضرت پیران پیر کے تھے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.